Hello students, welcome all of you to our YouTube channel। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास की एक और पोइम द 7 एजेस ऑफ मैन पढ़ेंगे। ये पोइम इंग्लिश के बहुत बड़े पोइट विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। लेसन नंबर 15 12th क्लास का है। तो आइए अब हम इस पोइम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पोइम को रीड करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. At first the infant, mewling and puking in the nurse's arm, then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail, unwillingly to school. And then the lover, sighing like furnace, with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. Then a soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth. And then the justice, in fair round belly, with good cap on lined, with eyes shaven and beard of formal cut, full of wise saws and modern instance, and so he plays his part. The 6th age shifts into the lean and sleepered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again toward childish treble pipes, and whistles in his sound. Last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. तो आपने इस पोइम को ध्यान से सुना होगा। अब हम अबाउट द पोइट और अबाउट द पोइम रीड करेंगे। आपकी बुक में जो ये पोइम दी हुई है उसके ठीक नीचे अबाउट द पोइम लिखा हुआ है। वहीं पर एक पैराग्राफ में अबाउट द पोइट है और अगले पैराग्राफ में अबाउट द पोइम है। तो प्लीज लिसन। William Shakespeare 1564 to 1616 was an English poet, playwright, actor and dramatist. He is often called the bird of Avon. His works include 38 plays, 154 sonnets and 2 long narrative poems. His plays have been translated into major modern languages and are performed the world over. Shakespeare produced most of his famous works between 1589 and 1613. His plays were primarily comedies, histories, tragedies, and tragicomedies: Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth,
As You Like It and The Merchant of Venice are considered to be some of his finest plays. इसमें लिखा हुआ है कि विलियम शेक्सपियर was an English poet, playwright, actor and dramatist. विलियम शेक्सपियर का, जिनका जन्म 1564 में हुआ, जिनकी मृत्यु 1616 में हुई, वो एक इंग्लिश पोइट थे, एक अंग्रेजी भाषा के कवि थे, प्ले राइट माना नाटककार थे, नाटक लिखने वाले, एक्टर भी थे, अभिनेता भी थे, और ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है जो किसी नाटक में रोल प्ले करता है. ही इज ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन. उन्हें बार्ड ऑफ एवन की उपाधि दी गई है, उन्हें बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है. तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा. विलियम शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड के स्टेटफोर्ड में हुआ था. स्टेटफोर्ड के अंदर एवन नाम की एक नदी बहती है, और BARD बार्ड मन होता है कवि, तो उन्हें एवन का कवि कहा जाता, बार्ड ऑफ एवन. इस उपाधि से उनको अलंकृत किया गया था. His works include 38 plays, 154 sonnets and 2 long narrative poems. उनके कार्य में या उन्होंने जो लेखन कार्य किया उसमें 38 प्लेज है, नाटक है, 154 सॉनेट्स है. 154 सॉनेट्स, ये सॉनेट एक प्रकार की पोइम होती है. 14 लाइन पोएम, 14 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड इट सोनेट. 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है. ठीक है, तो इन्होंने 154 बहुत ही सुंदर सुंदर सोनेट लिखे हैं, और 2 इन्होंने लॉन्ग टाइप की नैरेटिव पोइट्री भी लिखी है. हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेजर मॉडर्न लैंग्वेज. उनके नाटकों को मेजर मन प्रमुख, मॉडर्न मन आधुनिक, लैंग्वेज मन भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है, ट्रांसलेट किया जा चुका है. एंड आर परफॉर्म्ड द वर्ल्ड ओवर. और उन नाटकों को संसार भर में, दुनिया भर में परफॉर्म भी किया जा चुका है, उनको स्टेज पर प्रस्तुत भी किया जा चुका है. Shakespeare produced most of his famous works between 1589 and 1613. शेक्सपियर ने अपना जो अच्छा अच्छा लेखन कार्य था वो 1589 और 1613 के बीच में किया. His plays were primarily comedies, histories, tragedies and tragicomedies. और उनके जो नाटक थे वो प्राइमरली यानी मुख्य रूप से या तो कॉमेडी थे, कॉमेडी का मतलब हास्य नाटक थे, हिस्ट्रीज मन ऐतिहासिक नाटक थे, ट्रेजेडी थे, ट्रेजेडीज मतलब जिस ऐसा नाटक जिसमें पूरे नाटक में दुख ही दुख हो और जिसका अंत भी दुखद हो, ट्रेजेडी नाटक भी इन्होंने लिखे. या फिर ट्रेजी कॉमेडी यानी जिसमें कॉमेडी भी हो और ट्रेजेडी भी हो, ऐसे नाटक भी इन्होंने लिखे. हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मकबेथ, एज यू लाइक इट and The Merchant of Venice are considered to be some of his finest plays. Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, As You Like It और Merchant of Venice ये इनके कुछ अच्छे नाटक माने जाते हैं. Finest plays considered. Considered means माने जाते हैं, समझे जाते हैं. तो ये आपने विलियम शेक्सपियर का संक्षिप्त परिचय सुना. अब इस पोइम के बारे में कि इस पोइम में क्या बात बताई गई है, इस पोइम में क्या इस पोइम की थीम है, कवि इस पोइम में क्या बात कहना चाहता है, इस पैराग्राफ में संक्षिप्त सा एक शॉर्ट ब्रीफ नोट दिया हुआ है अबाउट द पोइम. पहली लाइन लिखी हुई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप. दिस पोइम इज ए मोनोलॉग टेकन फ्रॉम ए फेमस शेक्सपियरियन कॉमेडीज एज यू लाइक इट. ये पोइम एक मोनोलॉग है. तो सबसे पहले तो आप ये जो मोनोलॉग वर्ड दिया हुआ इसका मतलब समझिएगा. आपने डायलॉग सुना होगा. डायलॉग का मतलब जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वो डायलॉग होता है.
और मोनोलॉग का मतलब होता है, मोनो माने एक, जब एक व्यक्ति ही बात करे, अकेला ही बातें करे, अकेला ही कुछ गुनगुनाए, गाए, बोले, उसके सुनने वाला वहां पर कोई नहीं हो, तो उसको मोनोलॉग कहते हैं। तो ये पोएम जो है वो एक प्रकार का मोनोलॉग है। मैं आगे आपको समझाऊंगा ये मोनोलॉग क्यों है। फिलहाल ये लाइन सुनिएगा। दिस पोएम इज ए मोनोलॉग टेकन, इस पोएम को लिया गया, कहां से लिया गया है? शेक्सपियर के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉमेडी लिखी गई थी, एज यू लाइक इट। ये उस नाटक का नाम है, कॉमेडी नाटक था जिसका नाम था एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट से इस पोइम को लिया गया है। मतलब ये पोइम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, द 7 एजेस ऑफ मैन, ये एक सेपरेट पोइम नहीं है। शेक्सपियर ने एक नाटक लिखा था एज यू लाइक इट। उस नाटक के अंदर, जैसे फिल्म के अंदर सॉन्ग होता है, वैसे उस नाटक के अंदर ये पोइम थी। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब ये मोनोलॉग क्यों है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। उस पोइम के अंदर एक पात्र था जिसका नाम था जैक्स। वो जो जैक्स जो पात्र था वो बहुत ही दुखी आत्मा था, एनी टाइम सैड मूड में रहता था वो। तो वो जो पात्र जैक्स था वो एक दिन जंगल में शिकार की तलाश में, किसी भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, और तभी उसका जो पूरा मूड है वो सैड मूड हो गया। उसको लगा कि ये ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये संसार एक स्टेज है, यहाँ सब व्यक्ति अपने अपनी भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार उसने बहुत ही सैड मूड में ये कविता बोली थी, गाई थी, गुनगुनाई थी। और एट द टाइम, उस समय उस जैक्स के आसपास उसकी पोइम को, उसके उस गीत को सुनने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए इस पोइम को मोनोलॉग कहा गया है। ये जो मोनोलॉग एक पोइट्री की एक कला है। शेक्सपियर के अलावा भी बहुत सारे जो कवि है, इंग्लिश पोइट है, उन्होंने इस कला का बखूबी इस्तेमाल अपनी अपनी पोइट्री में, अपने साहित्य में किया है। अगली लाइन में आप देखिएगा लिखा हुआ है, इट इज स्पोकन बाय मेलनकली जैक्स। ये पोएम स्पोकन मन बोली गई है। देखो रिटन तो किसके द्वारा है? रिटन तो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, क्योंकि नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा तो पोएम भी उसने लिखी है। लेकिन इस पोएम को बोला किसने, स्पोकन किसके द्वारा है? स्पोकन बाय मेलनकली जैक्स। मेलनकली का मतलब दुखी, बहुत ही उदास से भरा एक पात्र है जैक्स। उसने बोला है, अकॉर्डिंग टू द पोइट मैन्स लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेज। कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन को 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य का जो पूरा जीवन है उसको हम 7 स्टेज में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सी है वो 7 अवस्थाएं? जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति 7 प्रकार की अवस्थाओं में से गुजरता है, अकॉर्डिंग टू द पोइट ऑफ दिस पोइम। कौन सी अवस्थाएं हैं वो? इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पेंटालोन एंड ओल्ड एज। विस्तार से हम जब पोइम पढ़ेंगे तो इन एक एक स्टेज की क्या क्या विशेषता होती है उसको हम पोइम में पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है, इट इज वन ऑफ शेक्सपियर्स ऑफन कोटेड मोनोलॉग। ये शेक्सपियर की बहुत ही ज्यादा कोटेड मोनोलॉग है। कोटेड मीन्स इस पोइम की जो लाइनें हैं वो दुनिया भर में लोगों ने बहुत ज्यादा बार इसको उदाहरण के रूप में लिया है, यानी इतनी प्रसिद्ध है कि ये जुबा जुबा पर इस पोइम का नाम है, इस पोइम की लाइनें हैं। जैसे ये दुनिया एक रंगमंच है, कई फिल्मों में ये डायलॉग है। तो एक ऑफन कोटेड मोनोलॉग है, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, और इस पोइम को आयम्बिक पेंटामीटर छंद में लिखा गया है। आयम्बिक पेंटामीटर, जब मैं आपको इस पोइम का सेकंड पार्ट जब मैं वीडियो जारी करूंगा तो उसमें मैं ये जो आयम्बिक पेंटामीटर है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर दूंगा। फिलहाल आगे लिखा है, मैनी राइटर्स फ्रॉम पाइथागोरस टू प्रेजेंट डे हैव कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू ए स्टेज। पाइथागोरस से लेकर वर्तमान तक के अनेक कवियों ने, राइटर ने इस संसार की तुलना किससे की है?
एक स्टेज से की है। तो ये हुआ हमारा अबाउट द पोएम। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक है उसमें इस पोएम के अबाउट द पोएम के नीचे इस पोएम के जो मेन जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो दिए हुए हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा थोड़ी सी हम उसकी भी चर्चा कर लें। जैसे इसमें 1 नंबर पे लिखा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। एक वर्ब है म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। इसका मतलब होता है क्राइंग वीकली, धीमी आवाज़ में, कमज़ोर आवाज़ में रोना। वाइनिंग ये भी एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कंप्लेनिंग, शिकायत करते रहना, ग्रम्बलिंग मन बड़बड़ाते रहना। सैचल एक नाउन है जिसका मतलब है, सिंपल सा मतलब है बैग, स्कूल बैग जो होता है, हम बस्ता जिसको बोलते हैं, सैचल। स्नेल ये एक समुद्री जीव होता है जिसका मतलब घोंगा। वेरी स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत ही धीरे चलने वाला जीव होता है, बहुत धीरे चलता है ये। फर्निस भट्टी, फर्निस का मतलब होता है भट्टी। अब देखिए आगे लिखा हुआ है डिवाइस यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर हीटिंग। बहुत उच्च तापमान की गर्मी के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। फर्निस भट्टी होती है। पार्ड इसका लीपर्ड और पैंथर, लीपर्ड पैंथर मतलब तेंदुआ। कैनन का हिंदी अनुवाद होता है तोप। लिखा है पीस ऑफ ऑल्टरली दैट यूजेस एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव का मतलब होता है विस्फोटक। विस्फोटक सामान को उपयोग करने का ये हथियार होता है, शस्त्र होता है। सॉज ये भी नाउन है। सॉज मीन्स प्रोवर्ब्स और वाइज सेइंग, ये जो कहावत है, मुहावरे हैं। पेंटालोन एक फुलिश ओल्ड पर्सन था। एक जो इंग्लैंड के अंदर जो नाटक वगैरह किए जाते थे, अभिनय जो किया जाता था, उनमें एक हास्य कलाकार हुआ करता था जिसको पेंटालून कहते थे। हौजरी से बना है। हौजरी जो हम इसमें लिखा देखो, ए मैन्स गारमेंट कवरिंग द लेग्स एंड रीचिंग अप टू द वेस्ट। ऐसा कपड़ा जो मनुष्य की टांगों को ढकता हो और उसकी कमर तक पहुंचता हो। तो इसमें जुराब भी हो सकते हैं, ये जो हम ट्राउज़र पायजामा वगैरह पहनते हैं, ये हौज। पाउच थैला बोल दो, पॉकेट, जेब, स्मॉल बैग फॉर कैरिंग लूज आइटम। सैंक ये भी नाउन है। द लेग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की टांग को सैंक कहा जाता है। ट्रेबल ये मीनिंग आपके घर में जो सीडी प्लेयर होता है या डीवीडी प्लेयर है या टेप रिकॉर्डर है या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो गीत गाने सुनने के काम आता है, उसके ऊपर एक बटन होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम के पास में 2 बटन दिए होते हैं जिनमें एक पे लिखा होता है बेस और एक पे लिखा होता है ट्रेबल। ट्रेबल बटन की जब हम बढ़ाते हैं, इसका मतलब उसकी आवाज़ तीखी हो जाती है, और बेस से उसका साउंड है, उसमें जो ये तबला वगैरह, उसकी आवाज़ ज़्यादा हो जाती है। तो ट्रेबल का मतलब लिखा हुआ है टोन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और रेंज, तीखी आवाज़, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़। सांस का मतलब होता है के बिना, किसी चीज़ के बिना यानी विदाउट। और कैपॉन मेल चिकन यानी नर मुर्गा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट वर्ड। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस पोइम के बारे में सुना, पोइट के बारे में सुना, डिफ़िकल्ट वर्ड के बारे में सुना, और अब हम इस पोइम को शुरू करते हैं। मैं आपको एक एक लाइन का हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगा। आप बहुत ही ध्यान और गंभीरता के साथ इस पूरी पोइम को समझने का प्रयास कीजिएगा। द 7 एजेस ऑफ मैन, विलियम शेक्सपियर की ये पोइम शुरू करते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये पूरी दुनिया एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वीमन merely players,
और सभी स्त्री और पुरुष मेयरली मन केवल प्लेयर है। प्लेयर मीन्स पात्र है। वैसे तो प्लेयर मन खिलाड़ी होता है, लेकिन स्टेज पर रोल प्ले करने वाले प्लेयर है, पात्र है। तो पहली दो लाइनों में कवि ने इस संसार को तो स्टेज कहा है कि ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, ये पूरा संसार एक बहुत बड़ा स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वीमन मेयरली प्लेयर्स, और सभी स्त्री और पुरुष जो इस संसार में पाए जाते हैं वो इस स्टेज के, इस रंगमंच के पात्र है, कलाकार है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, और इस संसार के सभी स्त्री पुरुष जो इस संसार रूपी रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाते हैं वो एक निश्चित समय पर एंट्रेंस यानी प्रवेश करते हैं और एग्जिट माने यहां से चले जाते हैं। एग्जिट का मतलब होता है निकास, चले जाना, बाहर चले जाना, और एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश, प्रवेश द्वार। तो हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, इस संसार रूपी रंगमंच पर एक दिन जन्म लेता है, अर्थात प्रवेश करता है, और जब उसकी उम्र समाप्त हो जाती है तो वो इस रंगमंच से, इस संसार से हमेशा के लिए विदा लेकर चला जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और प्रत्येक व्यक्ति इन हिज टाइम, अपने इस समय में, कौन से समय में, जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय है उस समय के दौरान प्लेज मैनी पार्ट्स, प्लेज मन निभाता है, मैनी पार्ट्स मन बहुत सी भूमिकाएं। कवि कहता है कि एक आदमी अपने जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय है उसमें बहुत सी भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, कवि कहता है कि इस प्रकार वो जो अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, हिज एक्ट्स, उसके अभिनय को, एक्ट्स माने अभिनय को, बीइंग 7 एजेस, 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। यहां तक कि इन 4-5 पंक्तियों को आप पहला स्टेंजा मान सकते हैं। वैसे ये पोएम एक स्टेंजा में है, अलग अलग स्टेंजा नहीं है, लेकिन हम अर्थ के लिए, इसका भावार्थ हमें समझ में आ जाए, इसके लिए हम इसको अलग अलग पार्ट में यदि बांटना चाहे तो यहाँ तक कवि का पहला विचार है। ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो आपने पहला स्टेंजा सुना, अब आगे आप इसको ध्यान से सुनिए। तो कवि ने कहा है कि मनुष्य की जीवन काल को हम 7 भागों में बांट सकते हैं। एक मनुष्य अपने जन्म से मृत्यु तक विभिन्न प्रकार की 7 अवस्थाओं में से गुजरता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और एक व्यक्ति उन अवस्थाओं में क्या क्या करता है, उन अवस्थाओं की क्या विशेषता होती है, जानेंगे हम अगली कुछ पंक्तियों में। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स। कवि कहता है कि सबसे पहली अवस्था में व्यक्ति इन्फेंट होता है। इन्फेंट यानी एक शिशु होता है, एक बालक होता है। और वो बालक क्या करता है? म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। म्यूलिंग मीन्स वो रोता रहता है, क्राइंग करता रहता है। एंड प्यूकिंग माने उल्टी करता रहता है, वॉमिटिंग करता रहता है। कहाँ पर? इन द नर्सेज आर्म्स। एक नर्स की बाहों में, जो उसको पालन पोषण करने वाली धाई माँ होती है, उसकी बाहों में एक छोटा बालक हर समय रोता रहता है, उल्टी करता रहता है। और एक छोटा बालक है, वो बड़ा हेल्पलेस होता है, वो अपने कोई भी काम खुद नहीं कर सकता। हर काम के लिए वो अपनी नर्स, अपनी मदर पर डिपेंड करता है। तो पहली अवस्था के बारे में आपने सुना। आगे लिखा है, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सेचल and shining morning face creeping like snail unwilling to school। कवि कहता है then the whining school boy। और दूसरी अवस्था में एक व्यक्ति बचपन से अगली जो अवस्था है वो है स्कूल बॉय। हर व्यक्ति स्कूल जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन स्कूल बॉय के जस्ट पीछे एक शब्द लिखा है
द वाइनिंग स्कूल बॉय। वाइनिंग स्कूल बॉय मतलब, वाइनिंग का मतलब होता है शिकायत करने वाला, एनी टाइम कंप्लेन करने वाला। एक छोटा बच्चा जब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में होता है तो उस बच्चे की बिल्कुल भी मंशा नहीं होती है कि वो स्कूल जाए, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि वो स्कूल जाए, तो वो स्कूल नहीं जाने के अनेकों अनेकों बहाने ढूंढता है, अनेकों अनेकों प्रकार की वो शिकायतें करता है कि मुझे उस प्रकार की स्लेट चाहिए, मुझे वो चौक चाहिए, वो पेन चाहिए, वो कॉपी चाहिए, वो टिफिन चाहिए। और उसके जो पेरेंट्स है वो उसकी उन शिकायतों की पूर्ति करते रहते हैं ताकि किसी भी प्रकार से वो भोला बच्चा स्कूल पहुंच जाए। तो विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही एक मनोविज्ञानी की तरह, एक साइकोलॉजी जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसकी तरह इन्होंने इस बात को समझा है और उन्होंने कहा है कि अपनी सेकंड स्टेज में एक मनुष्य स्कूल बॉय होता है और वो वाइनिंग करता रहता है, वो एनी टाइम कंप्लेन करता रहता है विथ हिज सैचल, अपने स्कूल बैग के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग मन चमकता हुआ मॉर्निंग फेस, सुबह का उसका चेहरा बिल्कुल चमकता है, चमाचम एकदम। उसकी मम्मी उसको तैयार करके रेडी करके स्कूल के लिए बढ़िया नई ड्रेस पहना करके, उसको टिफिन लंच बॉक्स पानी की बोतल वगैरह दे करके उसको घर से किसी प्रकार से रवाना करते हैं। लेकिन कभी कहता है शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग, लेकिन वो बच्चा क्रीपिंग करता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, लाइक स्नेल। किसकी तरह धीरे चलता है? स्नेल की तरह। ये जो स्नेल जो जीव है, मैंने आपको बताया एक समुद्री जीव होता है जो अपने संसार में सबसे धीरे चलने के लिए फेमस है। अब वो बच्चा धीरे क्यों चलता है? बिकॉज ही डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल, अनविलिंगली टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल जाने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती, अनविलिंगली टू स्कूल, इसलिए वो बच्चा धीरे धीरे चलता है। तो इस प्रकार आपने स्कूल के आगे फुल स्टॉप लगा हुआ है। यहां तक आपने दो अवस्थाएं पढ़ ली है, पहली अवस्था इन्फेंट, दूसरी अवस्था स्कूल बॉय, एंड देन द लवर। अब हम थर्ड स्टेज में प्रवेश करते हैं। एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस विथ ए वोफल बैलड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। एंड देन द लवर, कवि कहते हैं कि अगली अवस्था में एक मनुष्य लवर की भूमिका निभाता है, प्रेमी बन जाता है, आशिक बन जाता है, मजनू बन जाता है। साइंग लाइक फर्नेस, और वो अपनी प्रेमिका की याद में साइंग, साइंग मन आहें भरता है। किस तरह से आहें भरता है? लाइक फर्नेस, लाइक फर्नेस, फर्नेस यानी भट्टी की तरह आहें भरता है। विथ ए वूफल बैलड, वूफल मीन्स वो बेहद दुखी, विरह के, वेदना के, याद के बैलड मन गीत गाता है। सैड सॉन्ग जिसको आप कहते हो, वो अपनी प्रेमिका की याद में सैड सॉन्ग गाता है। मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्राउ, और ये गाने उसने अपनी जो मिस्ट्रेस है, अपनी जो प्रेमिका है, उसकी आईब्राउ, आईब्राउ मतलब यहाँ पर आईब्राउ का मतलब उसकी सुंदरता, उसकी जो ब्यूटी है, उस पर उसने ये गीत लिखे थे और अब वो उनको गाता है। इस प्रकार थर्ड स्टेज में हर व्यक्ति लवर बन जाता है, प्रेमी बन जाता है। मोस्टली वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार, इसलिए तो सैड सॉन्ग गाता रहता है। देन ए सोल्जर, अब चौथी अवस्था में व्यक्ति एक सिपाही की भूमिका निभाता है। देन ए सोल्जर, फिर वो एक सोल्जर बन जाता है, एक सिपाही बन जाता है। अब सिपाही की क्या क्या विशेषता होती है? फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ, स्ट्रेंज ऑथ का मतलब है यूज स्लैंग लैंग्वेज, गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करता है, एकदम अपनी डेली जो रूटीन की उसकी लैंग्वेज होती है उसमें गुस्से वाली भद्दी गालियां ऐसी बोलता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, और उसकी जो बियर्डेड दाढ़ी होती है
वो होती है तेंदुए की तरह। जेलस इन ऑनर, ये खास बात है उसकी। जेलस होता है वो, ईर्ष्या करता है। किस मामले में? ऑनर, सम्मान के मामले में, इज्जत के मामले में, कि उसको सम्मानित किया जाएगा, इस मामले में वो बड़ा जेलस होता है। और क्या विशेषता होती है एक सोल्जर की? सडन एंड क्विक इन क्वाल। क्वाल यानी झगड़ा करने में बड़ा सडन एंड क्विक होता है, बड़ा फुर्तीला होता है, हर बात पे दम से जल्दी से वो झगड़ा कर लेता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। दोनों लाइनों को एक साथ समझना। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। कवि कहता है कि एक सिपाही बबल रेपुटेशन के लिए, बबल यानी ट्रांजिटरी, क्षणिक, बहुत ही कम समय की, रेप्यूटेशन यानी सम्मान, इज्जत, प्रसिद्धि को पाने के लिए, सीकिंग मन तलाश, ढूंढना, खोजना, एक क्षणिक इज्जत और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए इवन इन द कैनन्स माउथ, वो तोप के मुंह में जाने को भी तैयार रहता है। कैनन माने तोप। यहां पर तोप के मुंह में जाने का मतलब है कि वो रेप्यूटेशन प्राप्त करने के लिए, ऑनर प्राप्त करने के लिए, इज्जत, प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करने के लिए कोई भी खतरे से खेलने से डरता नहीं है। कैनन्स के माउथ में भी वो चला जाता है। तो इस प्रकार हमने फोर्थ जो स्टेज है मनुष्य की, उसमें हमने ये पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द पोइट कि आदमी अपनी फोर्थ स्टेज में एक सोल्जर की भूमिका निभाता है। वो बड़ी स्लैंग लैंग्वेज यूज करता है, उसकी दाढ़ी तेंदुए जैसी होती है, बड़ा जेलस फील करने वाला होता है, झगड़ा करने में बड़ा सडन एंड क्विक होता है, बबल रेपुटेशन के लिए, एक क्षणिक जो प्रसिद्धि है उसको प्राप्त करने के लिए वो किसी भी खतरे से डरता नहीं है, कैनन्स के माउथ में भी चला जाता है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैप ऑन लाइंड, और एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली। पांचवी अवस्था में, फिफ्थ स्टेज में, एक व्यक्ति जस्टिस की भूमिका निभाता है। जस्टिस माने जज, न्यायाधीश। क्या विशेषता होती है? चूंकि हम जानते हैं विलियम शेक्सपियर के टाइम में इंग्लैंड में जुडिशरी जो व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया जो थी, वो बेहद भ्रष्ट थी। इस लाइन से ये चीज क्लियर होती है। इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैप ऑन लाइन। फेयर राउंड का मतलब गोल मटोल, बेली मन पेट। इन जो जस्टिस महोदय है, जो न्यायाधीश होते थे, इनका गोल मटोल तोंद निकला हुआ पेट था। क्यों भाई? विथ गुड कैप ऑन लाइन, क्योंकि ये रिश्वत में मुर्गे का ताजा मांस लेते थे। ताजा मांस खा खा करके इनकी तोंद निकल आई। यहां पर इस लाइन का मतलब है कि इंग्लैंड में न्यायिक व्यवस्था इतनी ज्यादा चरमराई हुई थी कि आप एक जज को एक मुर्गे की रिश्वत दे करके न्याय को पासा पलड़ा अपनी ओर घुमा सकते थे। भ्रष्टाचार की उस रिश्वत को खाते खाते उनके पेट, उनकी तोंद बाहर निकल आई। इसलिए यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने इस लाइन के द्वारा अपनी उस मन की अनुभूति को व्यक्त किया है। विथ आइज सीवर एंड बियर्ड अ फॉर्मल कट। विथ आइज सीवर, रिश्वत लेते हैं, तोंद बढ़ी हुई है, लेकिन अपने पद की गरिमा रखने के लिए विथ आइज सीवर, सीवर मन कठोर, इनकी आंखें बड़ी कठोर होती है। सामने से कोई इनकी तरफ दृष्टि डालता है तो सोचता है न जाने कितने ईमानदार होंगे। विथ आइज सीवर, इनकी आंखें बड़ी कठोर होती है, सख्त होते हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट,
और बड़ी फॉर्मल कट में, फ्रेंच कट में इनकी दाढ़ी होती है। फुल ऑफ वाइज सॉस, कवि कहता है कि इनके पास बुद्धि से भरी कहावतें होती है। फुल ऑफ वाइज सॉस, बुद्धि से भरी कहावतें होती है, मुहावरे होते हैं। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और आधुनिक उदाहरण होते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं, वाइज मैन होते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार ये अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आपने ये कौन सी अवस्था पढ़ी? फिफ्थ स्टेज ऑफ द मैन। आगे लिखा हुआ है साफ साफ, द सिक्स्थ स्टेज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर पैंटालून with spectacles on nose and pouch on side, his youthful horse well saved a world too wide, for his trunk sank and his big manly voice turning again toward child stable pipes and whistles in his sound। यहाँ तक ये स्टैंजा है छठी अवस्था का। काफी सारी बातें आपको इसमें सुनने को मिलेगी, कृपया एकदम ध्यान से आप सुनेंगे। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, छठी अवस्था शिफ्ट करती है, परिवर्तन होता है। यहां से जस्टिस की जो उसने भूमिका निभाई उसके जस्ट बाद छठी अवस्था, सिक्स्थ स्टेज, ये शिफ्ट होती है, परिवर्तित होती है, बदलती है। किसमें बदलती है? इनटू ए लीन, लीन मन दुबला पतला, एंड स्लीपर्ड मन चप्पलें पहना हुआ, पैंटालून। इस अवस्था में आदमी की स्थिति एक हास्य कलाकार जैसी हो जाती है, कॉमिक फिगर की तरह लगता है, दुबला पतला, पैरों में चप्पलें पहने हुए, विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, नाक पर चश्मा, आई साइट कमजोर हो जाती है, पाउच ऑन साइड, दोनों तरफ जेबें होती है, पाउच ऑन साइड, जो चौड़ा पायजामा पहना होता है उसके दोनों तरफ जेब, जिसमें जरूरत का सामान, चश्मे वाली डब्बी है और कुछ ऐसे एटम सटम। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, नाक पर चश्मा, पैरों में चप्पल, दुबला पतला, पाउच ऑन साइड। हिज यूथफुल हॉर्स, उसने अपने यूथफुल जवानी के टाइम में जो हॉर्स मन जुराब थे, वेल सेव्ड, उनको बड़ा बचा के रखा, संभाल के रखा कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो इनको पहनूंगा। फौजी था, सिपाही था, जब जस्टिस था, लवर था, उस टाइम के उसने जो हौज, जो जुराब थे, मोजे थे, वेल सेव्ड, उनको बचा करके रखा। लेकिन ए वर्ल्ड टू वाइड, वो जुराब अब बिल्कुल ढीले ढाले हो गए, वर्ल्ड टू वाइड, एकदम ढीले हो गए। क्यों जी? फॉर इज श्रंक सैंक, उसकी श्रंक सैंक यानी दुबली पतली टांगों के लिए। श्रंक मन सिंकुड़ी हुई, एकदम पतली पतली मरियल सी टांगे, सैंक मन टांगे। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बड़ी दमदार जो मैनली वॉइस थी, जो मर्दाना आवाज थी, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्ड स्टेबल पाइप्स, वो आवाज जो उसकी रौबदार आवाज थी, जो मैनली वॉइस थी, मर्दाना आवाज थी, वो अभी टर्निंग मन बदल गई। किस में बदल गई? टुवर्ड चाइल्डिश, बच्चों जैसी, ट्रेबल पाइप्स, ट्रेबल मन तीखी आवाज, पाइप्स एक वाद्य यंत्र होता है जिसमें एकदम तीखी आवाज होती है, सीटी जैसी लिखा हुआ है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, उसकी आवाज में अब जब वो बोलता है तो सीटियां निकलती है, सही तरीके से बोल भी नहीं पाता, दांत गिरने लगे हैं। जो दमदार भारी भरकम मर्दाना आवाज थी वो भी अब चली गई। तो सिक्स्थ एज में आदमी न तो बूढ़ा होता है न जवान होता है, अधेड़ उम्र होती है, यूजलेस पर्सन, आई थिंक यूजलेस पर्सन, बेकार सा आदमी होता, कोई काम दाम नहीं होता बस। लास्ट सीन ऑफ ऑल, सबसे अंतिम दृश्य, that ends this strange eventful history, और इस दृश्य ने एंड्स मन यहां आकर समाप्त हो जाती है। क्या? दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, यहां आकर के उसका जो
इवेंटफुल हिस्ट्री है, जो घटनाओं से भरी पूरा इतिहास है, वो इस अवस्था में आकर समाप्त हो जाता है, अंतिम अवस्था। इज सेकंड चाइल्डिशनेस, ये दूसरा बचपन है। एक बचपन तो बचपन में था ही था, कवि ने अंतिम अवस्था जो ओल्ड एज है उसको भी दूसरे बचपन की संज्ञा दी है, सेकंड चाइल्डिशनेस कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति मियर ऑब्लिवियन की स्थिति में पहुंच जाता है। केवल मियर मान केवल, ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मीन्स विस्मृति, लॉस ऑफ मेमोरी। उसकी स्मृति खत्म हो जाती है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। आपने देखा होगा एक वृद्ध व्यक्ति के पास जब उसकी परिचित जाके पूछते हैं कि बाबा क्या आपने मेरे को पहचाना, तो वो अपने हाथों से टटोल करके कहता है नहीं बेटा पहचाना नहीं। मियर ऑब्लिवियन, केवल विस्मृति होती है, वो किसी अपने को पहचान नहीं पाता, उसकी यादें धुंधली पड़ जाती है। सांस टीथ, बिना दांतों के हो जाता है। सांझ आइज, बिना आंखों का हो जाता है। सांझ टेस्ट, स्वाद का भी पता नहीं चलता है क्या खाया है मैंने। सांझ एवरीथिंग, सब कुछ समाप्त हो जाता है। वृद्ध व्यक्ति के दांत गिर जाते हैं, आंखों से अंधा हो जाता है, सुनाई नहीं देता है, स्वाद का पता नहीं चल जाता है, याद नहीं रहती है। इसलिए कवि ने इस ओल्ड एज को, इस लास्ट स्टेज को सेकंड चाइल्डिशनेस का है। क्योंकि एक बच्चा भी, बच्चे के मुंह में भी दांत नहीं होते हैं, उसके पास आंखें होती है पर वो पहचान नहीं पाता है। आपको बचपन की कोई बात याद नहीं है क्योंकि उस समय भी हम मियर ऑब्लिवियन की स्थिति में होते हैं। तो बुढ़ापे की तरह बचपन होता है, बचपन की तरह बुढ़ापा होता है। इस प्रकार विलियम शेक्सपियर ने अपनी इस पोइम में मनुष्य को 7 अवस्थाओं में, मनुष्य की जो अवस्था है उसकी पूरी उम्र है उसको 7 भागों में विभाजित किया है। उम्मीद है कि इस पोइट्री का आपको ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो इसी पोइम का एक और वीडियो, उस वीडियो में आपको सेकंड पार्ट जो वीडियो में जारी करूंगा, उस वीडियो में इस पोइम के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है, इसके अलावा और जो चीज़ें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।